हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ दिसंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download using the Play Store. Once you have downloaded it, you need to log in with your Google ID, and once you have logged in, you will be moved to this page. And here you can see the current affairs section. Here is your all courses, my courses, doubt section, and your home section, where we will be providing you with the current affairs quizzes and the PDFs if you have purchased our course. For the course, we offer multiple courses. The courses are very good and will be helpful to you based on your 1 year preparation or 2 year preparation. You can choose any of them. In the course, we provide you current affairs in both Hindi as well as English. In current affairs section, we provide you daily current affairs, weekly current affairs, as well as monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with not just the content, also will be giving you a 20 questions quiz daily, so that you can assess your performance. Similarly, in weekly, we will be giving you on weekly basis a quiz of 50 questions which you can assess. Apart from that, we'll be giving you a combined PDF of the whole week that will be containing important current affairs of that weeks, and same for the monthly basis. Apart from this, we do topic wise current affairs. That is, there are multiple topics such as apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs. So all these topics are covered by us on our YouTube channel, where you can refer to those videos. And apart from this, we also cover the banking questions and banking exams. So the courses will be very helpful to you, they will be very beneficial to you. I suggest you to go and check our courses. And if you made up your mind to purchase the course, you can use the code VICAS10 and you will be getting an additional 10% discount on the purchase you make. So go now, check our courses, because they are very helpful and will be very beneficial to you if you are preparing for the government exams. तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वन लाइनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मार्क करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। पहला कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $125 मिलियन का लोन फॉर उत्तराखंड स्टेट। याद रखना, एडीबी का किसके साथ हुआ? उत्तराखंड के साथ। ठीक है, किस लिए? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एडीबी ने $125 मिलियन का लोन दिया। फिर साउथ कोरिया ने एक वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बना रही है। ये कहाँ पे? 2025 तक बना रही है, और साउथ कोरिया बना रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी किसके द्वारा बनाई जा रही है? किसके द्वारा? साउथ कोरिया। और इसमें जो कंपनी हेल्प करेगी वो है ओशनिक्स। इन्होंने टाई अप किया है यूएन हैबिटेट के साथ। ठीक है, कि 2025 तक हम एक वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाएंगे, क्योंकि सी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ करें ताकि, और पॉपुलेशन भी आप देख रहे हैं बढ़ ही रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडरसन। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है कहाँ की? स्वीडन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एंडरसन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कहाँ की? स्वीडन की। नेक्स्ट आपको ट्रायो का याद रखना है। अभी रिसेंटली इंडिया ने ट्रायो को ज्वाइन किया। इंडोनेशिया और इटली इसके मेंबर है। अब देखो कैसे याद रखना है आपको इस G20 का, कि इटली की चेयरमैनशिप थी अभी 2020 से 21 तक G20 की। इसके बाद आई इंडोनेशिया के पास, 21 से 2022 तक रहेगी। फिर इसके बाद चेयरमैनशिप आएगी इंडिया के पास, 2022 से 2023 तक इंडिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी G20 की। ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया, और उसमें बताया जो कि वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी है वो कौन सी है? टेल अवीव। ये कहाँ पे है? ये इजराइल में है। ये टेल अवीव कैपिटल है इजराइल की। इजराइल की 2 कैपिटल होती हैं, एक तो है टेल अवीव, सेकंड का आप मुझे नाम बताओ। होमवर्क है आपका। अच्छा क्वेश्चन है कि दूसरी कैपिटल क्या है, और याद रखना सबसे महंगी सिटी कौन सी बनी? वो बनी टेल अवीव। नेक्स्ट हम, और इससे अगर इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे चीपेस्ट कंट्री और चीपेस्ट सिटी कौन सी है, तो वो है सीरिया की कैपिटल डेमेस्कस। और इसको डेमेस्कस को ही वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कैपिटल भी बोला जाता है, डेमेस्कस को, सीरिया की कैपिटल को। नेक्स्ट वापस आ जाइए। अगला कह रहा है कि वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार कौन सी वो कॉर्पोरेटिव है जिसने रैंक 1 किया है इन द टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर के हिसाब से इफको रैंक नंबर 1 इन द टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स इन द वर्ल्ड। देन ईआईयू और इंडिया के बीच में एक
टाइप हुआ फॉर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। अभी हमने देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन का लोन दिया, किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने $135 मिलियन का लोन दिया वेस्ट बंगाल में इंप्रूव एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया, वेस्ट बंगाल के लिए दिया, ठीक है, WB से WB याद रखना। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक गॉट 15 करोड़ रुपीज ग्रांट फ्रॉम JFPR टू इम्प्रूव अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। नेक्स्ट, आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने एड्रेस किया 5th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, और कहाँ पे एड्रेस किया था? ये आबू धाबी में एड्रेस किया था। ये तीनों चारों चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, एडमा बरो, ये सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट बन गई हैं, कहाँ की? गैम्बिया की, ठीक है, एडमा बरो। नेक्स्ट, हम देख ही चुके हैं कि टेल अवीव, ये कहाँ की कैपिटल है? ये कैपिटल है इजराइल की, ठीक है। और ये क्या बनी? वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गई अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 2022, टेल अवीव याद रखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, टेल अवीव टॉप पे आई। और जो वर्ल्ड की चीपेस्ट सिटी बनी वो कौन सी बनी? सीरिया की कैपिटल डमेस्कस, जिसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर याद रखना, पेरिस फ्रांस से है, सिंगापुर ये आपकी सेकंड और थर्ड पे आ गई, जूरिच और हांगकांग ये 4th एंड 5th स्पॉट पे चले गए आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉयका की। हमने देखा कि इंडिया ने अभी ज्वाइन किया G20 ट्रॉयका। इससे पहले देखा था कि सबसे पहले आपकी जो चेयरमैनशिप थी G20 की 20-21 के लिए इटली के पास थी, 21-22 के लिए इंडोनेशिया के पास है, और फिर 22 से लेके 23 तक आपकी चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी? इंडिया के पास रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया कि दिसंबर, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है इससे रिलेटेड कि जो क्या थीम थी G20 लीडर समिट 2022 की, वो थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। आई रिपीट, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये आपकी थीम रहेगी G20 लीडर समिट फॉर 2022। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो अभी करंटली अगर मैं पूछूं किसके पास है आपकी प्रेसिडेंसी, तो आप इंडोनेशिया याद रखना, इंडोनेशिया के पास। फिर कुछ और वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं। ओल्फ स्क्लोज इनको अपॉइंट किया गया जर्मनी का न्यू चांसलर, मार्क करना। अगर मैं एशिया पावर इंडेक्स 2021 की बात करूं, इंडिया रैंक किया एज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। नेक्स्ट, फोर्ब्स की अगर मैं वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की बात करूं, इसमें पूछा जाए कि इंडिया की किन 2 महिलाओं का नाम आया था। एक तो थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और दूसरी थी नायका की फाउंडर फाल्गुनी नैयर। तो जो निर्मला सीतारमण की रैंक थी, इनकी रैंक थी 37th, और फाल्गुनी नैयर की रैंक थी 88th इन द वर्ल्ड्स टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया को मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में कैटेगरी में रखा गया। फिर इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO, इसको रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, रेट्स ऑफ SCO, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO की चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास। देन हम ये डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर, वो कौन सा कॉर्पोरेटिव है जिसने रैंक 1 किया या टॉप किया अमंग द टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स, वो है इफ्को। आ जाइए आगे, वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी कौन बना रहा है? साउथ कोरिया बना रहा है। कब तक बना रहा है? 2025 तक बना रहा है। किसकी मदद से बना रहा है? ओशनिक्स और UN हैबिटेट की मदद से आपका साउथ कोरिया वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। 2025 तक इसको ख़त्म करने की बात की गई, ठीक है। और ये किस लिए? टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग सी लेवल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन सी स्टेट है जिसने महाराष्ट्र को डिस्प्लेस कर दिया टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये RBI के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था कि गुजरात हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री आफ्टर डिस्प्लेसिंग महाराष्ट्र। याद रखना, RBI के द्वारा ये डाटा आया, गुजरात ये क्या बन गई है? इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई है, इसने रिप्लेस कर दिया है महाराष्ट्र को। ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने एड्रेस किया 5th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर? आबू धाबी में। देखो कितनी चीज़ किसने एड्रेस किया? आर एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने। कौन सा एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? 5th एडिशन। किसको एड्रेस किया? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। कहाँ पे एड्रेस किया? आबू धाबी में एड्रेस किया। तो ये 4 चीज़ याद रखनी है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको एक और 5वीं चीज़ याद रखनी है, थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस क्या थी? 5th एडिशन ऑफ इंडियन ओशंस कॉन्फ्रेंस की थीम
इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। आई रिपीट, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, ये थी आपकी थीम ऑफ द 5th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसको एड्रेस किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। और कहाँ पे एड्रेस किया था? अबू धाबी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हमने देखा था कि इंडिया की क्या रैंक थी, 4th इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। ये डाटा रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा डाटा को रिलीज किया गया। 4th पोजीशन पे कौन रहा? इंडिया। 1st पे यूएस, 2nd पे चाइना, 3rd पे जापान और 5th पे रशिया, क्योंकि 4th पे आ जाता है हमारा इंडिया। ठीक है, याद रखना ये डाटा। मूविंग ऑन, फिर कुछ वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की क्या रैंक रही? 56th। और टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की 56, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। अगर मैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करूँ तो इंडिया की रैंक 66 और टॉप करने वाला यूएसए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 रैंक इंडिया की और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 66। फिर अगर आप लोग पढ़ा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा, गुरुग्राम में। 101वां कंट्री कौन बना था इसको ज्वाइन करने वाला? यूएसए बना था। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है आईएसए को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा, याद रखना। नेक्स्ट, अभी इंडिया को रीइलेक्ट कर लिया गया है आईएमएम में। आईएमओ क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। कौन से पीरियड के लिए? 2022 से 2023 के लिए। ये डाटा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड अरब अमारात। वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने 4.5 डे वर्क वीक पे ट्रांजिशन ले लिया, कि हफ्ते में पहले 5 दिन काम होता था, तो अब 4.5 दिन काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, वो पहली कंट्री कौन है वर्ल्ड की जो पेपरलेस गवर्नमेंट है? वो है दुबई। इन्होंने पेपरलेस गवर्नमेंट को अपनाया, पेपरलेस फीचर को अपनाया, कि सब कुछ डिजिटाइज हो गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किनके बीच में? इंडिया फ्रांस के बीच में। ठीक है, कब बनी थी? 2015 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा, गुड़गांव में है। 101वां कंट्री कौन सा बना इसको ज्वाइन करने के लिए? यूएसए। और इनको यूएनजी ने अभी क्या दिया है? एक ऑब्जर्वर स्टेटस। नेक्स्ट, सेम चीज याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है आपको, इंडिया को रीइलेक्ट कर लिया गया है किसमें? आईएमओ में। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कौन से टाइम पीरियड के लिए? 2022 से लेकर 2023 के बीच के लिए, 2022 से 2023 के लिए इंडिया को रीइलेक्ट कर लिया गया है इनटू आईएमओ। नेक्स्ट आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। न्यू डेवलपमेंट आपका किससे एसोसिएटेड होता है? ये ब्रिक्स का होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसके ब्रिक्स के पहले मेंबर कौन थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2015 में ये बना था। इसके बाद 3 मेंबर और ऐड करे गए थे ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक में। वो थे बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। अब इन्होंने 4th मेंबर भी ऐड कर लिया गया, वो है आपका इजिप्ट। ठीक है, इंडिया ने वेलकम किया इजिप्ट को एज द 4th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स। ऑलराइट, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 4th मेंबर कौन सा बना? इजिप्ट। नेक्स्ट, कुछ और वन लाइनर्स देखते हैं। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान पार्टनर्ड टू प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड इंटेंसिफाई इंटर रीजनल कॉर्पोरेशन। इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ। फिर इंडिया ने वियतनाम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया टू इस्टेब्लिश पार्टनर इन डिजिटल मीडिया एंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया और वियतनाम ने साइन किया डिजिटल मीडिया और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट। फिर आ जाता है वर्ल्ड का मोस्ट एडमायर्ड मैन ऑफ 2020। इसमें टॉप करने वाला आप बताओगे कि इसमें टॉप किसने किया इस लिस्ट में? और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी रैंक रही 8th इन द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड मैन ऑफ 2021। नेक्स्ट आ जाता है चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, कौन रहे? कार्ल नेहमार। फिर प्रेसिडेंट ऑफ चिली, वो कौन है? गैब्रियल बोरिक। फिर आपको एक और इम्पॉर्टेंट डाटा याद रखना है। 5th एडिशन ऑफ ट्रू कॉलर की रिपोर्ट थी ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट ऑफ 2021। इसमें टॉप करने वाला बना ब्राज़ील एंड इंडिया की रैंक रही 4th। ये क्या स्कैम होते हैं? जैसे आपके पास स्कैम नहीं आते थे, कॉल आते थे कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो या फिर आप हमें ओटीपी बता दो। जो लोग स्कैमिंग करते हैं लोगों को, इवन इंडिया से दूसरे देशों में लोग स्कैम करते हैं, ब्राज़ील से कहीं और स्कैम करेंगे, कहीं और से कॉल आएंगे। तो वो क्या है? वो ये इसी रिपोर्ट बताता है, वो ये रिपोर्ट बताता है कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो इंडिया की इस अकॉर्डिंग रैंक रही 4th और ब्राज़ील ने इसमें टॉप किया अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन ऑफ ट्रू कॉलर्स ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल ह्यूरन्स का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021। ह्यूरन ग्लोबल रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2021। इसमें बोला गया कि इंडिया ने रैंक रहा थर्ड और यूएसए ने टॉप किया। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो एक स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा की हो जाती है। तो इंडिया ने अभी रिप्लेस कर दिया यूके को फ्रॉम द थर्ड स्पॉट, और थर्ड स्पॉट पे आ गया हमारा इंडिया इन द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड। तो ये थर्ड स्पॉट पे है। यूएसए टॉप पे रहता है, यूएसए के बाद आता है चाइना, फिर आता है इंडिया, फिर यूके, और फिर आता है आपका जर्मनी फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो इंडिया एंड मालदीव्स नेक्स्ट है। ये इंडिया और मालदीव्स ने एक साइन किया है MOU टू लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑन प्री अराइवल कस्टम्स डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट आ जाता है डोपिंग से रिलेटेड। डोपिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वाडा। वाडा ने आपको याद हो तो रशियन प्लेयर्स को बैन कर दिया था टू पार्टिसिपेट ऑन ओलंपिक्स ड्यू टू डोपिंग की वजह से। तो 2019 की एंटी डोपिंग रूल वायलेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक रही थर्ड और टॉप पे रहा रशिया। मार्क करना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031 एज पर द CEBR's वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल ऑफ 2022। तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी? इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है जापान इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट DMV। DMV क्या होता है? डूल मोड व्हीकल। ये क्या होता है? ये आपके रोड पे प्लस रेलवे ट्रैक्स पे दोनों पे वर्क करेगी। तो डूल मोड व्हीकल हो गई आपकी रोड्स पे एज वेल एज रेलवे ट्रैक पे वर्क करेगी, और ये लाइक कौन था? ये आपका जापान लाया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन बना? इजिप्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ पे ओपन हुई? शंघाई, चाइना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ पे? शंघाई, चाइना में। देन अभी हमने देखा था कि यूनिकॉर्न लिस्ट में अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन ग्लोबल रिसर्च उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि वर्ल्ड के मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कहाँ पर है। तो वो कहाँ पे आते हैं? यूएसए में आते हैं। यूएसए के बाद कहाँ पे आते हैं? चाइना में। चाइना के बाद पहले यूके होता था, लेकिन अब यूके को रिप्लेस कर दिया है इंडिया ने। ठीक है, यूनिकॉर्न वो क्या है? वो एक स्टार्टअप कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन होती है। ऑलराइट, तो अगर देखा जाए डाटा यहाँ देखें तो यूएसए टॉप पर विथ 487 यूनिकॉर्न्स, सेकंड पे चाइना विथ 301 यूनिकॉर्न्स, थर्ड पे अब इंडिया आ गया है विथ 54 यूनिकॉर्न्स। अभी 2021 में इन्होंने 33 यूनिकॉर्न्स ऐड करे। फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका यूके एंड फिफ्थ पे आ जाता है जर्मनी। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर एक चीज़ और याद रखना, जो इंडिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है वो है विद $21 बिलियन वैल्यूएशन। वो आपका एक एडटेक कंपनी है बायजूस, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जापान की। अभी हमने देखा था DMV। DMV क्या होता है? ड्यूल मोड व्हीकल। ड्यूल मोड व्हीकल क्या? जो कि आपके रोड पे भी चलेगी और आपके रेलवे ट्रैक्स पे भी चलेगी। तो वो कौन सी हो जाती है और कहाँ पे बनाई गई है? आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक पे भी वर्क करेगी, और यहाँ पे इस पे नॉर्मल रबर टायर्स भी हैं जो कि आपके रोड पे वर्क करेंगे। तो ये कहाँ पे, किस कंट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? जापान के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो और लाएं, ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है, जैसे हम वन लाइनर्स और लाएंगे आपके लिए डेली, बाकी जो टॉपिक्स होते हैं उसमें भी वन लाइनर्स इंट्रोड्यूस करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये चाहते हैं या नहीं। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions, they will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or
payment, or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.